calculation of pH of salt solution or solution obtained by mixing equal number of equivalents of acid and base. Now you can say that if you take acid and base, they will give salt. So whenever you mix acid and base, they will definitely react and they will form a salt or something left out. If both are completely consumed, so what is formed? Only salt and nothing is left out. So the solution is made of salt only. It is an aqueous solution of salt, and you have to find the pH of that particular salt solution. ठीक है? This is the thing. Either I will directly give you a salt, or I will give you acid and base. You have to mix it, and you have to obtain the solution in which salt is present, and you have to apply the same formula. Now, what is the most important learning for today's class? In the beginning, if you dissolve NaCl in water, there is no reaction. No reaction. It means NaCl will give you what ions? Na plus and Cl minus. So no reaction. Why there is no reaction? Because NaCl में जो Na plus है, that comes from NaOH. Cl minus comes from HCl. And NaOH is a strong base, HCl is a strong acid. Cation of strong base and anion of strong acid does not participate in hydrolysis, does not undergo hydrolysis. Does not undergo hydrolysis. It does not undergo hydrolysis. Cation of weak base and anion of weak acid undergo hydrolysis. It means if I take CH3COH acid, and if I take a strong base of salt, and I will get a salt, CH3COO-Na. This is a salt. So this salt is made of what? Weak acid and strong base. So when you dissolve this salt into water, it means if you dissolve this salt into water, salts are strong electrolytes. So it will dissociate first into ions. It will first dissociate into ions. And now the ions will start reacting with water. Now Na plus will start reacting with water to give what? Nothing. Because Na plus comes from where? Strong base. But when you take CH3CO minus, this anion comes from where? What is this? Weak acid. And this is strong base. So CH3CO minus start reacting with water to form CH3COOH. बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा. अनायन है तो अनायन will accept what? प्रोटॉन. प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा पानी से और OH पानी से निकाल देगा. Now this reaction is nothing but what? What is CH3CO minus? Weak base. What is CH3CO minus? Conjugate base of CH3CO. And which is what? Weak acid. Weak acid. What is CH3CO minus? Anion of CH3COH. Anion of CH3 COOH. Now, since it is a weak base only, see, it is generating what? OH minus. जो भी OH minus generate करेगा वो क्या होगा? Base होगा. Since CH3CO minus is generating OH minus, it means it's a base, but it is not completely generating, so it's a weak base. और आपको मैंने समझाया था कि अगर कोई weak acid है तो उसका conjugate base of weak acid भी क्या होगा? Weak base होगा. So weak base का मतलब weak acid का मतलब alpha less than 1, तो weak base का मतलब भी alpha less than 1. कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अल्फा के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ बताओ जरा? OH माइनस जनरेट हुआ. OH माइनस जनरेट कौन करता है? बेस जनरेट करता है. तो CH3CO माइनस क्या हो गया? बेस हो गया. So it's a nothing but what we can call it? We can call it simply what? जो हमने पढ़ चुका है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, है ना? अगर आयोनाइजेशन वीक बेस होगा तो कांस्टेंट कौन सी होगी? Kb. अगर वीक एसिड होता है तो कौन सी कांस्टेंट होती है? Ka. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट. तभी ये टॉपिक आगे बढ़ेगी, बड़े प्यार से बढ़ेगी. तो दिस इज नथिंग बट
क्या जनरेट कर रहा है? OH माइनस जनरेट कर रहा है, तो इट्स अ वीक बेस आयनाइजेशन। तो कांस्टेंट कौन सी होगी? Kb। दिस रिएक्शन इज आल्सो रेफर्ड एज हाइड्रो अनायनिक हाइड्रोलिसिस। दोनों का मतलब सेम ही है, अनायनिक हाइड्रोलिसिस। अनायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ व्हाट? अनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ water with रिएक्शन anion. ऑफ Water with anion anion. with वाटर विथ अनायन, रिएक्शन अनायन विथ वाटर। पर रिएक्शन तो सेम ही है ना? रिएक्शन Yes, बदल sir. दिया क्या मैंने? No, sir. No, sir. पर जब भी हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज करते हैं ना, तो हाइड्रोलिसिस के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं KH। क्या यूज करते हैं? KH. KH. तो KB और KH सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सर सेम होंगे. The सेम ही same. होंगे। जब रिएक्शन सेम है तो आपको मूड है किसी को राम बुलाने का, किसी को दूसरे को बुला, उसी बंदे को कोई और बुला रहा है श्याम, तो राम श्याम तो इंसान तो सेम ही हुआ ना, Yes, sir. Yes. बट हम किसी और तरीके से बुला रहे हैं। बट इसी चीज को आयनिक चैप्टर में दो अलग अलग चीजों से पढ़ाया जाता है। ठीक है, नाउ टेल मी, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में। खत्म तो इतना ही में हो गया सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस, लेकिन चलेगा 2 क्लास। अब देखिए यहाँ पे, इफ आई राइट द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, व्हाट इज CH3COH? टूटेगा, क्या जनरेट करेगा? So CH3COO minus and H. H प्लस या H3O प्लस इफ आई टेक वाटर, है ना? Yes, sir. कांस्टेंट कौन से लेंगे? Ka। कांस्टेंट कौन से लेंगे? Ka। K. ठीक है। और जो CH3CO माइनस है, ये क्या है? इसी का कॉन्जुगेट बेस है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी का कॉन्जुगेट बेस है, कोई डाउट नहीं इसमें। No, sir. No, sir. No doubt. I'm writing this, I'm writing this, ठीक है ना? बोलो, यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. No, sir. फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज CH3COH? Sir, Weak weak acid. acid. Weak acid. What is CH3CO minus Sir, conjugate Conjugate base base of of weak of acid. COOH. weak acid, that is CH3COH? और क्या बोल सकते हैं इसको? बोलो। Anion of weak acid. दोनों क्या है? Same. So same ही है. जब कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या हो गया? Weak वीक base. बेस। तो कौन सी कांस्टेंट लेंगे? Sir, KB. KB. कौन सी कांस्टेंट लेंगे? Sir, KH. KH. नाउ टेल मी, तो फिर से पूरा चीज बता दिया मैंने, फिर से बताया। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ? बट आगे तो बढ़ सकता था केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह, क्योंकि आपके जहन में सेट होना चाहिए। K इंटू KB क्या होगा फिर? KW. ये KW. जानते हैं? फॉर अ Yes. कॉन्जुगेट, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, K इंटू KB इक्वल टू क्या होता है? KW. ठीक है, कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. यहाँ sir. पे KB और KH क्या था? सेम। Sir, same था. The same था. तो K इंटू So KH K भी क्या into होगा? KH equals to KW. KW। तो KH का फॉर्मूला क्या हो गया? KW upon K. KW upon K. ठीक है ना? तो जब आप इसको अनायन मान ले, अनायन कब मानेंगे? जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे पानी में। जैसे हमने क्या डिसॉल्व किया?
CH3CO को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो CH3CO स्प्लिट हो जाएगा किसमें, कैटायन और एनायन में स्प्लिट हो जाएगा। CH3CO को डिसॉल्व कर दो पानी में तो CH3CO माइनस और Na+ में स्प्लिट हो जाएगा। Na+ का कोई काम होगा क्या? नो नहीं, सर, वैसे ही Na+ पढ़ा का रहे कोई काम, तो काम किसका होगा सर? तो CH3CO माइनस। या तो उसको आप अनायन ले लें, या तो उसको आप कॉन्जुगेट बेस ले लें, या तो उसको वीक बेस ले लें, जो मॉडल ले लें, रिजल्ट सेम ही आने वाली है। यस ये दिमाग में सेट हुआ? बोलो। Yes, sir. If I say I have obtained a 0.1 molar solution of CH3CO minus, or I obtained a solution of 0.1 molar CH3CO Na. Are they same or different? I obtained a solution of 0.1 molar CH3CO minus और 0.1 मोलर CH3COO Na, दोनों सेम है या डिफरेंट है? सर सेम होगा। तो सेम होगा। सेम हो। दोनों सेम ही होगा। सॉल्ट को डालो या उसके अनायन को डालो, बिकॉज उसका कटायन कोई काम का ही नहीं है। यस जब भी कोई कंपोनेंट कटायन या अनायन स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से आए, उसकी कोई जरूरत सॉल्विंग में नहीं होती है। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? No, sir. नो सर। पक्का अच्छे से दिमाग में सेट करिए ये पूरे डिस्कशन को। चलो इतना आप बता दिए। अगर अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, अगर अल्फा ऑलमोस्ट 0 होता है तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, या H+ की फॉर्मूला की फटाफट बोलिए। अब ये जल्दी बोल पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे आपको क्या बन रहा है यहाँ पे। H3O+, फॉर्मूला क्या होगा? CK। CKA ठीक है। इसमें क्या बन रहा है? अच्छा, C किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ वेरी गुड, CH3COH इनिशियली, है ना, Yes. टेकन। यस तो अब बताइए इसको देख के फटाफट, इसमें क्या जनरेट हो रहा है? OH माइनस OH OH minus. माइनस। क्या फॉर्मूला होगा? अंडर सर CKB हो जाएगा। सॉरी और CKH. H, है ना, बोलो। Yes, sir. हो गया, ठीक है ना। CKB और CKH, जहाँ पे अल्फा अगर अप्रोक्सीमेटली 0 होगा तो आसान है कि मुश्किल है बताइए? सही आसान इजी। है। अच्छा, अगर मैं आपको Ka दे दिया होता CH3COH का, कैन यू फाइंड आउट Kb? Yes, sir. बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, तुम्हारे सब सामने हैं। क्योंकि फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पे किसी और का Kb नहीं पूछ रहा, CH3CO माइनस का Kb पूछ रहा हूँ। वो CH3COH से रिलेटेड है ना, तो Kb इक्वल टू व्हाट, KW/K। K इंटू KH भी क्या होगा, KW के बराबर, सिंस Kb इक्वल टू क्या होता है? ये आसान है, Yes, sir. आसान है, आसान है। कोई डाउट है इसमें? No, sir. ये पूरा डिस्कशन समझ में आया Yes, sir. ना? व्हाट इज CH3COH हमने क्या लिया? वीक एसिड। Weak acid. व्हाट इज CH3CO माइनस? conjugate base of weak acid or anion of, बोलो, anion of weak acid. Weak acid. अब देखिए इतना समझ तो आ गया आपको। कैन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस एंड डू द सेम थिंग विद द कॉन्जुगेट एसिड? यहाँ पे हमने वीक एसिड लिया और फिर कॉन्जुगेट बेस के साथ खेला, फिर हमने ये पूरा रिलेशन बनाया। ऐसा ही हूबहू, सेम टू सेम, आई वांट यू टू राइट स्टार्टिंग विथ वीक बेस। लिख के दिखाइए, आपके सामने स्क्रीन है। वीक बेस कौन सा ले लेंगे? अमोनिया। अमोनिया वो एग्जांपल लेते हैं ना। यस सर। तो प्लीज ये नहीं लिखना है आपको, आपको स्टार्ट किससे करनी है बेटा? अमोनिया, नहीं तो फिर NH4OH, दोनों सेम ही होते हैं। स्टार्ट विद अमोनिया, टेक दिस NH3 ओनली, NH3 लेके करिए, ठीक है? करिए। Yes, sir. स्क्रीन आपके सामने रहेगा। मुझे ऐसा ही डायग्राम, जो रेड कलर जो इनक्लोज किया मैंने,
उस जगह पे जो जो चीजें लिखी हुई है वैसे ही फॉर्मेट में आई नीड विथ स्टार्टिंग विथ अमोनिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बार मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ फिर आराम से लिखूंगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, KB। के बी। यहाँ पे क्या आएगा, सर यहाँ अमोनिया क्या कटायन करता है, कटायन आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा, Anion. सर OH माइनस। OH माइनस। OH OH. अनायन आएगा बट OH माइनस बेटा। Yes. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कटायन। तो कौन सी कटायन कटायन, क्या नाम आएगा, सर NH3 प्लस NH2 NH3 प्लस। प्लस। बट सर कुछ भी 2 बोलते प्लस। रहते हो, 2+ होगा। सोचते ही नहीं हो, क्या क्या करते हो। अमोनिया क्या है, बेस, इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब प्रोटॉन क्या होती यस है, सर। H प्लस। फंडामेंटल को अगर आप साइड करेंगे ना तो आपसे नहीं सीख पाएंगे। अमोनिया बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट, व्हाट इज प्रोटॉन, H प्लस। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 NH4 पॉजिटिव। प्लस। H4 इसमें पॉजिटिव। क्या डिफिकल्ट पूछ लिया हमने, ठीक है। तो NH4 प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या जनरेट होगा फिर, OH minus. देखो H plus. अभी ना OH माइनस है, H plus. H3O प्लस। अब बहुत बता दिया, अब करिए, अब करिए, लिखिए नोटबुक पर। ये नहीं लिखना है, ये आप क्यों लिखेंगे जब ये आपके सामने है तो। टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस, फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम रहना तो मतलब चाहिए। वो सब लिखना है, आयनाइजेशन ऑफ वीक सब बेस कुछ KB। एक एक लाइन लिखनी है, तभी तो सीखेंगे आप, समझेंगे। वो भी कॉपी तो करनी नहीं है, समझ के लिखना है ना हर एक चीज। यस। तो इसका मतलब क्या, नहीं दिन पहले सीख लिया हमने, आयोनाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। एक सेंटेंस भी फ्रेम कर लेते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड और अनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों क्या होंगे, सर सेम होंगे। सेम होंगे। वैरायटी लिखेंगे बाद में हम लोग, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ जो भी भेज रहे हैं ऑलमोस्ट उनका करेक्ट है, अच्छा है। बढ़िया। सर इस बार सही था। हाँ सर मैंने भी भेजा आपको। तो मैंने उसका वो बाजू वाला जो था वो नहीं लिखा लिख दो ना, मैंने कहा हर चीज लिखो। सर। एक्चुअली वो स्पेस ही नहीं था तो समझा नहीं उसको कैसे करके लिखूं, इसलिए नहीं लिखा। देखो तुमने गलती, के ए इक्वल टू क्या लिखा आपने, के डब्ल्यू अपॉन के एच लिखा कि के भी होगा लास्ट में, के इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए या के बी, करेक्ट करिएगा। मैंने हाँ मैंने वो के बी इंटू लिखा के, था। हाँ बी तो के एच इंटू के बी भी करेंगे ना, के एच इंटू, बिकॉज के एंड के एच आर सेम इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट देखिए, cation of weak base and anion of weak acid undergo hydrolysis only. Breaking of water molecule on addition of a salt in water is called hydrolysis. Na2CO3 को हमने Na2CO3 से मान लीजिए, ओके CH3COH ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, CH3CO minus plus water giving CH3COH, that is hydrolysis of anion, और CH3CONA plus water will give you what, सर सेम होगा। CH3COH and this। तो आप बोलेंगे दोनों सेम कैसे है, क्योंकि क्योंकि all salts are strong electrolyte, are you getting it, यस। all salts are strong electrolyte। तो जो salt लेंगे आप, एक मिनट,
सर हमने जो अभी वीक बेस का लिखा वो वीक एसिड का नहीं लिखने का था। क्या बेटा लिखना था ना, स्पेस दे दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, यस सर। देखिए तो अगर हमने CH3CO माइनस दिया, ये भी चेंज कर देते हैं। ओके हमने पहले सॉल्ट लिख लेते हैं, फिर अनायन लिख लेते हैं। अनायन आया कैसे वो भी मेंशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, फिर वन बाय वन सबका डिस्कशन करेंगे। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्यों दोनों सेम है? बिकॉज CH3CO Na में Na का होना उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी क्या है ही नहीं नहीं है। इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट है? बिकॉज Na प्लस का कुछ वैसे भी नहीं होने वाला। ठीक है, मैं बॉक्स बना के दिखाता हूँ व्हाई दे आर सेम। दिस विल ब्रेक इनटू व्हाट? CH3COO minus and Na positive. and NaOH will break into what? Na positive and OH minus. और ये तो रिमेनिंग वैसे ही रहेंगे क्योंकि इनको ये वीक कंपोनेंट है। और फाइनली ये क्या बन जाएगा? अब Na प्लस क्या हो जाएगी? Cancel. कैंसल आउट हो जाएगा दोनों से। तो व्हाट इज रिमेनिंग? सर सेकंड रिएक्शन बाद। ऐसा क्यों हुआ बताइए? सर क्योंकि Na का कोई Na रोल ही नहीं strong था। base से आता है। व्हाट इज दिस? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। acid. Strong. सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज NaOH? सर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? सर वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते तो क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। हैं। यस तो आयोनाइज हो गया तो Na प्लस NaCO कैंसिल। इफेक्टिवली क्या बच गया? कुछ नहीं। तो CH3CO Na लिखो और CH3CO माइनस लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अच्छा कौन सा है? ढंग से सोच के बताइए। CH3CO Na अच्छा है या CH3CO माइनस अच्छा है? जो आप CH3CO minus. वेरी गुड, CH3CO माइनस। बिकॉज उस Na को लेकर हम करें क्यों अननेसेसरी चीजें रखें अपने पास? वेरी सिंपल थिंग है ना। एक को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कह रहे हैं, एक को हाइड्रोलिसिस ऑफ अनायन कह रहे हैं। दोनों सेम क्यों है? बिकॉज सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस और सॉल्ट में कटायन की हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रही, सिर्फ अनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो दोनों सेम ही हो गए ना। हाँ सर। हेलो, यस सर। ठीक है। Now, on the basis of neutralization, there are 4 types of salt. Salt of strong acid, strong base. क्या है ये? Strong acid, strong base. ये कौन सा salt है? Weak acid, वीक एसिड। strong base. ये strong Weak acid. base. Strong. देखो देखो, सबसे बड़ी बात तो आपको CH3COH और NH4OH वो दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए। Strong acid, ये weak acid, weak base ना। ठीक है, तो मुझे बताओ, बताते हैं ना, अगर मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व करूं तो क्या क्या कटायन है? सभी सॉल्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड सॉल्ट, यस सभी क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पानी में जाते ही टूट जाएगा आयंस में। यस। तो NaCl का कटायन और अनायन दोनों ही पानी में गए, दोनों का क्या होगा? सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट होगा। तो क्या करेंगे दोनों पानी के साथ? कुछ नहीं। सो कुछ भी कुछ नहीं। रिएक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ कटायन या अनायन है। ठीक है, अगर मैंने डिसॉल्व किया बेटा CH3CONa इन द सॉल्यूशन तो क्या होगा? वो सो स्प्लिट वो होगा CH3COO माइनस और Na पॉजिटिव में स्प्लिट होगा। Na का कुछ काम ही नहीं होगा और CH3COH रिएक्शन करके वाटर से CH3CO CH3COO CH3CO will react with water to form done। NH4Cl में बताइए, जो जो आपको लगे वो बोलते जाइए, जो आप समझे वही बोलना। अभी तो पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया हाइड्रोलिसिस में, लेकिन खत्म हो गई, वो सिर्फ फॉर्मूले बचे हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में ऐड करने के लिए। बोलो थर्ड सर केस में पहले NH स्प्लिट होगा फिर NH4 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। NH4 प्लस। अच्छा NH4 NH4 Yes, अगर sir. मैंने आपको NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1 मोलर, पानी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? सर सेम होगा 0.1 0.1 ही मोलर। होगा। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट का या कटायन का? सर कटायन का। कटायन का। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बिकॉज पार्टिसिपेट कौन करता है? कटायन या कटायन। अनायन? कटायन कर रहे हैं। कटायन या अनायन। ठीक। सिमिलरली फोर्थ वाले केस में कौन हाइड्रोलाइज होगा? सर दोनों भी। CH दोनों होगा। दोनों होगा, बिकॉज दोनों ही वीक कंपोनेंट से आए हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो नो सर। सर। नो ठीक है, सर। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करते हैं। अब ये देखिए जो हमने ऊपर सिखाया, CH3CONa एक मिनट, CH3COH प्लस NaOH क्या फॉर्म किया? CH3CONa न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। CH3CONa प्लस NaOH क्या फॉर्म कर रहा है? CH3COH। आप कहेंगे कितनी बार ये लिखते हैं? इतनी बार लिखते हैं, इसके बाद दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए। अच्छा, उसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? CH3CO माइनस प्लस H2। तो दिशा दिमाग में सेट हुआ कि नहीं बताओ? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट इतना ही है ना? ये दोनों क्या है? यस सेम है। तो सेम है। तो इसको बोलेंगे क्या? आयनिक हाइड्रोलाइजर। अनायनिक हाइड्रोलिसिस हाँ और lysis। हाइड्रोलिसिस ऑफ अनायन। दिस। तो जब एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कांस्टेंट क्या दे दिया? Kn। उसी को मैं उल्टा लिख दिया ना नीचे, देखो यस CH3CONa प्लस वाटर गिविंग CH3COH प्लस NaOH, KH नाम दे दिया। तो KH और KN में क्या रिलेशन है? They are सर दोनों reciprocal। इन्वर्स है। If you reverse the reaction, the equilibrium constant becomes reciprocal। पढ़ा है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यस। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है ना? यस। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आप करना चाहे तो कर लेते हैं, देख लीजिए। पहला NaCl है। NaCl स्प्लिट होकर क्या देगा? सर Na पॉजिटिव और Cl Cl नेगेटिव माइनस। रिएक्शन ही नहीं होगा। किसका हाइड्रोलिसिस होगा? सर दोनों किसी का का भी भी नहीं नहीं। होगा। दोनों का नहीं होगा। सेकंड में Na प्लस Na प्लस प्लस और CO3 माइनस। CO3 माइनस किससे आता है? H2CO3 से। और H2CO3 कैसा एसिड है? वीक एसिड है, तो कॉन्जुगेट यस बेस भी सर। क्या होगा? वीक बेस होगा। वीक तो Na प्लस का कुछ नहीं होगा, पर CO3 माइनस का होगा। 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 CH3CO माइनस में सर CH3CO CS माइनस का होगा, Na का नहीं होगा। पॉजिटिव। Na प्लस का नहीं होगा, इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा। सर फोर्थ इसमें में दोनों का होगा। दोनों का होगा। बिकॉज बोथ आर कमिंग फ्रॉम वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस।
सर फिफ्थ वाले में सिर्फ NH4 पॉजिटिव का होगा, Cl माइनस का नहीं होगा। ठीक है, इसमें NH4 plus NH4 का पॉजिटिव NH4 का होगा, S का कुछ भी नहीं, वैसे ही पड़ रहा है। कैसे पता? H2S से आया और वो H2S क्या होता है? वी क्या? देखो लास्ट कल का क्लास का पढ़ा हुआ है, फिर भी आप लोग याद नहीं रखते, मतलब आप लोग कोई भी रिवाइज करके नहीं आए हैं। कैसे मान लो कि रिवाइज करके आए हैं? लास्ट क्लास का है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया है, डाइबेसिक एसिड वीक, देखो H2S लिखा है, H2CO3 लिखा है, कैसे मान लें आप लोग पढ़ के आते हैं? दिस इज द ओनली प्रूफ ना, ऐसे क्वेश्चन में प्रूफ क्यों दिया जाता है? यही सब चेक करने के लिए। आप कह तो देंगे हम पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़ा है। NO3 कर लीजिए इसको। अब ये मुश्किल सवाल है। Fe पे Fe2 पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे NO3 माइनस, HNO3 का स्ट्रॉन्ग Yes. एसिड, इसका नहीं होगा, पर ये होता है। तो Fe हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो वीक होते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव है। तो ये Fe2 प्लस किससे आया होगा? बेस क्या हुआ होगा? FeOH twice. Fe यहाँ पे भी so इधर Fe3 Fe3 पॉजिटिव हो, प्लस, Cl नेगेटिव। Fe3 प्लस भी होगा, ये नहीं Cl होगा। नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे सर, इधर सिर्फ S H2 माइनस का होगा, Na का नहीं होगा। यहाँ पे A positive. C. दोनों का भी नहीं होगा. दोनों ही नहीं होगा, Yes. बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो अल्कली Yes. मेटल के बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे दोनों का नहीं होगा. क्यों? दोनों ही स्ट्रॉन्ग Strong कंपोनेंट्स हैं। acids. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। लिख देता हूँ चलो एक जगह पे। NaOH क्या है? Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 क्या है? Strong स्ट्रॉन्ग acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। लास्ट का बता दीजिए, कौन से एसिड है? सर ये HCOH है, COOH. उसका वो Ca C2 minus. The COH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड है। Yes. यहाँ पे SCO माइनस और यहाँ पे Ca2 प्लस C2 माइनस। बोल रहे हो. होगा, और ये नहीं उधर होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये कौन सी एसिड है? HCOOH। और यहाँ पे CaOH twice। ये क्या है? वीक एसिड। वीक ठीक है, एसिड। और स्ट्रॉन्ग वीक बेस का है। मतलब Strong. क्या है? अल्फा लेस देन 1 पूरे सॉल्विंग में। कंपेयर करेंगे तो वीक, एक वीक एसिड भी किसी और से स्ट्रॉन्गर हो सकती है, इट इज रिलेटिव, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द सॉल्विंग पार्ट, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टुवर्ड अल्फा। डन, ये सेक्शन भी हो गया। यस। ठीक, when a salt is dissolved in water, to prepare its aqueous solution, अच्छा नितिन क्वेश्चन बन रहे हैं यस बुकलेट से? बुकलेट क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ सर, बहुत हाँ इजी। सर, 52 easy था। तक बना लिया, एक्सरसाइज Very भी good. कंप्लीट हो गया। नोट्स के किसी भी केस से अगर बाहर आ जाए बताइएगा। नहीं सर, सब नोट से ही तो था। वो नोट्स का ही था। सिले मिस्टेक, सिली डाउट्स जो भी लगे प्लीज पूछेगा। When a salt is dissolved in water to prepare its aqueous solution, being a strong electrolyte, क्या हो जाएगा? ये completely कंप्लीटली आयनाइज होगा। dissociates या ionizes, dissociate लिख लेते हैं, सेम ही है मतलब, dissociates into its, तो पहले हम सॉल्ट को ब्रेक कर लेंगे,
आयंस में। और फिर वो जो आयंस फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे, नहीं तो फिर आयोनाइजेशन शो करेंगे। दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। सेम ही रहेगा। बस नाम देने के लिए कि हाँ सर हाइड्रोलिसिस हो रही है। प्रोड्यूस्ड would react with water. This process is called hydrolysis or salt hydrolysis. जो कटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और अनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड था वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो दे विल बिहेव एज व्हाट, बोलो। स्पेक्टेटर आयन। वेरी गुड, स्पेक्टेटर आयन। ये सब कुछ नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन सब समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो। नो सर। तो एक जनरलाइज्ड केस लिख लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे इस पर। अगर मैंने कोई बेस ले लिया बी, और क्या ले लिया, BOH, कौन सी एसिड है BOH, बोलो। BOH और B हमने बेस ले लिया, HA हमने एसिड ले लिया, तो दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, BA बनेगा, BA। नहीं तो फिर बोलो, सोचो। अगर B लेंगे तो क्या बनेगा, BA, नहीं तो फिर बनेगा BH प्लस। कैसे, एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ NH4OH और ये ले लेता हूँ NH3, HA ले लेता हूँ HCl, तो BA क्या बनेंगे, NH4Cl, और ये क्या बनेगा, NH4Cl, सेम ही होगा ना। BNH3 है तो NH4Cl होगा, क्लियर है। यस। उन दोनों के रिएक्शन से BOH plus HA will give BA plus H2O। अगर यहाँ पे B लिया तो यहाँ पे BH प्लस है। BH प्लस है। कौन सी रिएक्शन हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन। 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 यहाँ से आपको हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। समझा दिया सब कुछ ऊपर का डिस्कशन, अब सिस्टमेटिक फॉर्म में नोटबुक में लिखेंगे कैसे वो लिख रहे हैं। अब उसी BA को अगर जब वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। BOH और क्या बनेंगे, H2O। H2O। क्या बोलेंगे इसको, सॉल्ट Salt हाइड्रोलिसिस। और hydrolysis। डिपेंडिंग ऑन किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसको अकॉर्डिंग हम लोग नेम दे सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हमने अगर KN, यहाँ पे क्या लिखा KH, KH नथिंग बट 1/kn। 1/,
अब तो याद ही हो गया होगा, याद नहीं हो गया बताओ। यस हाँ सर। हो गया। अच्छा, Ba जो सॉल्ट है, जो Ba सॉल्ट है, कटायन कौन सी है? B BA प्लस plus B A plus minus और A माइनस। अगर BH प्लस है तो BH प्लस BH A माइनस plus होगा बेटा। plus A minus. BH प्लस A माइनस होगा, तो क्या होगा बताओ? BH प्लस। Plus and क्यों बार बार लिखता हूँ? A बिकॉज बेस के दो डेफिनेशन है। बी एग्जाम्पल, अगर हमने NH4Cl लिया तो यहाँ पे H4 plus NH4 प्लस H4 positive, and Cl और negative. Cl minus, और यहाँ पे अगर NH4Cl लिया तो ये भी positive. Same NH4 result प्लस, देगा. और ये Cl minus. ठीक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ऊपर No, जो sir. रिएक्शन कराया, कराने के, अब हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं सेपरेटली। B प्लस हाइड्रोलाइज होगा, इट कैन फॉर्म BOH प्लस H प्लस। वही अगर मैं यहाँ पे BH प्लस लेता, ये क्या फॉर्म होता? B और यहाँ पे H3O positive. ये क्या होंगे? कटायनिक। Hydrolysis. ये तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल if BH plus or B is what? B Weak base. base. Similarly, A minus will react with water to form HA plus OH minus. ये कौन सी है बताइए? Anionic hydrolysis. Possible if HA is Weak acid. Weak acid. इतना समझा दिया बेटा, अच्छे से क्लियर है सब कुछ? Yes sir. Yes, sir. So, वो भी जो सेंटेंस लिखा था मेंशन कर लेते हैं। Cation of weak base and conjugate acid of weak base are what? Same. Same. कौन सा वीक बेस लिया हमने? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस लिया तो। Similarly, anion of weak acid and conjugate base of weak Weak acid acid. are same, है ना? Conjugate acid of weak base. What is weak base? Alpha less than Alpha 1. less than 1. The conjugate acid of weak base is weak weak acid. acid. This conjugate base of weak acid alpha less than 1 is Weak also base. Weak base. weak base. यहाँ तो कोई डाउट बोलो। No, sir. No sir. अब No, sir. हाँ, सब कुछ समझ में आ चुका है, फॉर्मूले भी जनरेट कर लिया मेरे सामने आपने। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वन बाय वन कटायनिक हाइड्रोलिसिस और अनायनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। कटायनिक हाइड्रोलिसिस तीन तरह के हम लोग स्टडी करेंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बताना किसमें इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा? इक्विलिब्रियम किसमें पढ़ेंगे? या आयनिक के कुछ किस Partial. पार्शियल में? पार्शियल होगा तभी तो दोनों चीज बचे रहेंगे। Yes.
Yes. Yes. इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और थोड़े टफ आएंगे, पहले नो ही कर लेते हैं। नो में क्या था, कौन से कैटायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती? Strong. सर स्ट्रॉन्ग, याद तो है ही, सॉल्विंग गलती नहीं करेंगे आप। यस और ऐसा ही बिल्कुल सेंटेंस आप अनायनिक हाइड्रोलिसिस लिख लेंगे, आपको पता ही है, कॉपी पेस्ट करने का मौका मिलता है। विच आर weaker acid than H3O plus and its conjugate base stronger base than OH minus show no hydrolysis। अब ये इंफॉर्मेशन है, इसी का रिजल्ट क्या है? सिर्फ वाटर के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। Cations of strong base do not undergo hydrolysis। We are talking about only in what? Water। इन वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब ही क्या है? वाटर रिएक्टिंग विद वाटर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक कंपोनेंट की जो बात कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर की बात कर रहे हैं। एग्जांपल Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus, Ba2 plus, Sr2 plus, Ca2 plus। मीन्स Na plus प्लस वाटर क्या होगा, क्या बनना चाहिए? NaOH plus H2 ये देखो मैंने और बोला, H तूने plus मान H लिया, लिखा होगा है ही नो, नहीं रिएक्शन। ठीक है ना। बी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये इन दोनों पे जो फर्स्ट सेकंड है, यहाँ भी बी कर लीजिए, ये दोनों खत्म कर लिया हमने। सॉल्विंग न्यूमेरिकल कहाँ पे आएंगे? थर्ड वाले केस में। The cation which are stronger than बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव, इस पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। conjugate base is a weaker
बेस देन H2O. तीन चीजें हैं कंपेयर करने के लिए, H2O, H3O प्लस और OH माइनस. You have to compare with this three. Show complete. Hydrolysis. तो weaker base than H2O बोले या फिर weaker base than OH minus बोले, दोनों सेम ही है ना? कैसे H2O और OH माइनस में स्ट्रॉन्गर बेस OH माइनस होता है? दे आर नॉट सेम. अच्छा मुझे बताओ, H2O के पास ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है या OH माइनस के पास है? O के पास भी लोन पेयर, OH माइनस के पास भी लोन पेयर. तो which has higher tendency to accept proton? Think answer, logical answer. इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है. H2O क्या? क्यों? कि OS माइनस के पास पहले ही माइनस है. तो कौन सा वो माइनस से एक्सेप्ट कर रहा है? H प्लस ही एक्सेप्ट कर रहा है ना. किसके पास जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी H प्लस की, या किसके H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? एवरीवन बोलो. H2O. कैसे दिखा? देखो, एक गलत आंसर को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना. व्हाई? रीजन बताओ. H प्लस को जाना है दोनों के पास. सो वो OH माइनस के पास जाएगा ना क्यों? लेकिन क्या रीजन है? सर? H2O के पास जाएगा, H3O पॉजिटिव, वो वैसे भी अनस्टेबल ही रहेगा, फिर H2O को H2O बन जाएगा जो न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, एक आंसर हुआ. और बताओ. Sir, opposite charges. गुड आंसर. और बताओ. अच्छा, और इम्प्रूव्ड आंसर बताओ. अच्छा आंसर दे नहीं पा रहे जब सबको पता है आंसर क्या है. दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है. ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है. ऑक्टेट कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हैज लोन पेयर, एंड OH माइनस में भी O के पास लोन पेयर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. सो बोथ कैन डोनेट लोन पेयर. तो व्हिच हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर? या व्हिच हैज हायर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर? OH minus. OH minus. OH minus. क्यों? फिर OH minus वो O उसके माइनस है तो सर वो इसके जैसा बिहेव करेगा. पास एक लोन पे है ना, तो कैन गिव. क्या हार्दिक बोलो? फिर उसके पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है तो दे सकता है. दोनों के पास लोन पेयर है. फिर से लिखो नोटबुक पे. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड. लिखो. Already we have written this sentence. Both are same element. कोई डाउट नहीं है. One is having two lone pair, other having three lone pair. One logic can be this, जो किसी ने नहीं बोला अभी तक, कि दोनों सेम ही एलिमेंट है सर, पर एक के पास तीन लोन पेयर, एक के पास दो लोन पेयर है. Which is higher tendency? Definitely O नेगेटिव के पास. पर इससे भी बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन कौन सी है? कि which is more electronegative? O is more electronegative और O minus is more electronegative. बहुत बढ़िया. पीरियोडिक रिवाइज करके आइए कल क्लास में, क्वेश्चन बने ना बने. पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग जान है, चैप्टर पे चैप्टर बढ़े जा रहा है. और O माइनस विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नहीं, और वो एंड व्हाई? बोलो. फिर O माइनस के पास लोन पेयर है, O के पास नहीं है, तो फिर वो देने के लिए करेगा. बट O माइनस हार्दिक तो जिसके प्रेजेंट पास में जो पढ़ रहे हैं उससे लॉजिक मत दीजिए. अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
को एक्सप्लेन कर, डेफिनेशन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हार्दिक बोलो। If you are able to explain the electronegativity definition, then you can easily tell. Sir, tendency to give electron. Tendency to give electrons. Sir, tendency to share electrons. Accept. Tendency to share electrons. बहुत बढ़िया. Accept electron. Accept electron. ये भी ठीक ही है, मतलब लास्ट वाला थोड़ा सा ठीक था. Actual definition क्या बताओ? Tendency to keep electron. उसका भी और अच्छा definition बताओ. Tendency to keep electron is shortcut definition. Improved जो actual definition बताइए. देखते हैं कहाँ चला गया टॉपिक. ये दो टॉपिक वीक होने के कारण पीरियोडिक रिवाइज कीजिएगा सारे प्रॉपर्टी सब लोग. बस कह दिया, सर ने सुन लिया होगा, कान से निकाल देंगे. कल पूछेंगे पता नहीं सर, हम तो आयनिक का क्वेश्चन बना रहे थे. कोई एक्सक्यूज तो सामने रहेगा ही. बताइए. टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. Covalent bond. इन सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स. तो नेगेटिव चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे क्या? No, sir. No, sir. तो टेंडेंसी टू कीप इलेक्ट्रॉन्स के पास है क्या? O माइनस के No, पास. sir. नहीं सर, ऑक्सीजन के किसकी पास. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? O minus O की. माइनस O माइनस की. तो O माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब वो कम कंजूस है. यस हाँ. Yes. तो कम कंजूस है मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रखने की है, देने की हो सकती है. देने की हो. देने की. हो गया आंसर खत्म. समझ में आ गया दिशा? क्लियर है? हाँ सर. चलो एक एग्जांपल, जब ये किया तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं. H2 और NH3 stronger, something is accepting proton, it means it is donating electron paired to the proton. तो सिंपल सी बात है, which is having more tendency to give electrons, it will be stronger base. और H2 और NH3 में stronger base कौन सा? सब पढ़ा हुआ है अच्छे से, सब भूल गए आप लोग. पीरियोडिक पढ़िएगा नोट्स को. H2 और NH3 में कौन सा stronger base है? बताइए. अब चार्ज तो है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल अलग अलग एलिमेंट ही है, तो और इजी क्वेश्चन हो गया. इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. सी ऐसा तो नहीं है ना कि आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन एंड आई हैव टू गिव द आंसर. यू पीपल शुड बी साइलेंट. इसके आंसर फट से आना चाहिए था. Sir, NH3. सर ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना क्यों? सर? along a period सर, मतलब right इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से left इंक्रीजेस, से. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विदाउट एनी एक्सेप्शन. देयर इज डिफरेंस ऑफ 0.5. Yes sir. तो n is what? Less electronegative. अगर लोन Then पे किसके oxygen. पास है? O के पास है, तो कंफ्यूज कर सकता है. बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसाइडेड बाय व्हाट? Electronegativity. Electronegativity. तो n is less electronegative, hence more tendency to give electrons. हो गया सिंपल. अभी हम भटकेंगे नहीं, नहीं भटकेंगे नहीं, भटक गए हैं तो और भटक जाते हैं. F माइनस और Cl माइनस कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? क्या सर? कौन सा strong सर है? F माइनस. क्यों? सर वो ज्यादा कंजूसी करेगा ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए. सब टेम्पररी आंसर देते हैं, पुराना कुछ भी पता नहीं, सब भूल सर गए. आपने क्वेश्चन क्या पूछा? सेम क्वेश्चन रिपीटेड. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है? आप लोग सोचिए, तब तक लाइन तो कम से कंप्लीट कर लूं. रुको सोचो तब तक. F माइनस और Cl माइनस में बताइए. F माइनस और Cl माइनस में कौन आंसर है? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? अरे वही क्वेश्चन है बेटा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है F माइनस और Cl माइनस में? बदला कहाँ क्वेश्चन? सडनली कुछ और नहीं ना पूछ लूंगा.
सर F माइनस। क्यों? तो क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबल। वेरी गुड, बोलो बोलो, सही है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमने यूज नहीं किया, मतलब वो सेंटेंस तुमने पिक किया, वो सेंटेंस पिक कर लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बोलो आगे। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। स्टेबिलिटी कहाँ से आ गई बेसिक स्ट्रेंथ में? सर वो था ना, आपने बोला था। था तो, लेकिन सबको कहीं भी उल्टा पुल्टा यूज नहीं करना है ना। किसके पास लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है? दोनों के पास कितने सर कितने लोन पेयर है? सर दोनों के 4 पास 4 4 ही लोन रहेगा। पेयर है। किसके पास लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है? F माइनस। क्यों? सब सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल लॉजिक है। सर तो उसका अपने को ऑफ साइज ट्रैक छोटा है ना CL माइनस। साइज छोटा है। मेरा एक भी क्वेश्चन का अगर टफ आंसर हो जाए तो बता दीजिए, भले कितनी भी चीजें टफ पढ़ पढ़ लेते हैं मजाक मजाक में क्लास में। तो F माइनस की साइज स्मॉलर, लोन पेयर डेंसिटी कह रहा हूँ, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन साइज। तो डेंसिटी ज्यादा किसके पास होगी? F माइनस के पास। तो F माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हेंस मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो F minus is stronger base than Cl minus based on lone pair density. OH minus is more than H2O based on electronegativity. Because F और Cl down the group आती है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। दिशा, पुरानी चीजें भूल गए हो, कोई फायदा नहीं से पढ़ाई का। टाइम तो नहीं मिलेगी बेटा, सबको टाइम नहीं मिलता। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। जैसे इस क्लास का क्या इंपॉर्टेंस बताता हूँ। इस क्लास का इंपॉर्टेंस ये हुआ कि सर ने रियलाइज करा कि पीरियोडिक भूल गए हैं। सिर्फ आपको 1 घंटे लगेंगे समय निकाल के पूरे वीक में इसको रिवाइज कर डालना। और आप कर लेते हैं तो फिर ठीक है, सुन के छोड़ देते हैं फिर वही हालत होगी। और एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि सर हमारे तो टाइम नहीं मिला, हम तो वो कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे। फिर कभी नहीं मिलेगा टाइम। अभी पीरियोडिक, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव मिस किया ना, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चेक कर सकते हैं नोट से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे पॉइंट्स, उसके एग्जांपल्स, उसके एप्लीकेशंस फटाफट देख लिया। कौन सी न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है पीरियोडिक टेबल में, वो हिट करते रहना चाहिए थ्योरी थ्योरी को, नॉलेज को।
सभी क्या होंगे? Same. आप इतना लिखा है आपने, अनायनिक हाइड्रोलिसिस आप ट्राई कीजिएगा, क्या सेंटेंस होगी, ठीक है ना? ये एज अ होमवर्क ट्राई करिएगा, जहां पे लगे समझ में नहीं आ रहा वहां पर डैश दे दीजिए। ठीक है ना सब लोग? हाँ सर। यस तो अगले क्लास में अलग अलग केस का फॉर्मूला, क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, ओके, Thank you, sir. बाय Thank you. सर, थैंक यू। बाय।